Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking the class of Genetics class 10. It's my second lecture of the genetics. In the previous lectures I told you about the Mendel's laws of inheritance, right? As you know, Gregor John Mendel, he is interested in the plant hybridization. उसको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा रुचि थी और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में रुचि के चलते उसने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड फॉर द पी प्लांट्स द एक्सपेरिमेंट्स विच he selected the pea plant for his experiments because the plants, they were annual, they are with well defined characters, and they can be grown easily, and they can be self pollinated easily. As they can be self pollinated easily, so he selected the pea plant, and he was successful in experiments. As his experiments, what he conducted, the experiments on the pea for 8 years, from 1856 to 1865. He has done the experiments on them and the results over there, but the results of his work was published in 1866. He did not receive any recognition of the work for 34 years. No one has recognized what he has done, what is the importance of his work, what he is doing. उसके बाद again the same laws of inheritance were rediscovered by the three scientists. Here you can see Dutch scientist Hugo de Vries, German scientist Karl Kerens, Austrian scientist Erich von Tresmar. All of them, they are working independently, separately, they are not knowing each other, and they reach on the same result what he has told in 1866, in 1900. Then these three biologists, after their experimental results, he found that Mendel has said in 1866 it was true and it has of grave scientific value. Work Mendel, and he received his recognition of his work after 34 years, and then he was known as the father of genetics. So I say the father of genetics, Gregor John Mendel. Now Mendel's laws of inheritance, which we have already discussed in the last chapter, last my lecture, they can be applied to the man also. In man, the number of diseases are known which are transferred from generation to generation, and these are due to genetic disorders like hemophilia, color blindness, night blindness, etc. They are the important. But according to the syllabus of the ICC in 2023-24, only two diseases the board has recognized, that is color blindness and hemophilia. Only two diseases were there, color blindness and hemophilia. He has to do with the sex linked. Now, as you know, the biology which deals with the inheritance of man, that is called the human genetics. What is human genetics? In human genetics, the science of the branch of biology which deals with the inheritance of man, that is called the human genetics or eugenics. It is called as human genetics or eugenics. As you know already, in human genetics, what happens? In man, the total number of chromosomes are present. They are 23 pairs. They are 23 pairs, or 46 chromosomes are there. Along these 26 pairs, 22 pairs are similar. They are present similar in both man as well as in the woman. Male और female 22 pairs जो chromosomes होते हैं वो एक से ही होते हैं और उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं. और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि किसी भी सेक्स को डिफाइन करता है, इसलिए उसको हम सेक्स क्रोमोसोम है. फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स क्रोमोसोम से.
और मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम से. फीमेल इट हैज means 22 plus XX. Here 22 plus XXY. The female total number of chromosomes is 46. Female they have 2 X chromosomes, male they have 1 X and 1 Y chromosomes, and then they produce X. जब X प्रोड्यूस होंगे तो क्या होंगे, X फीमेल में 2 X गैमेट्स होंगे, ये जो फॉर्म करेंगे ये क्या होंगे, X होंगे. और यहाँ पर ये स्पर्म्स में स्पर्म्स होंगे. तो जो ये X और स्पर्म्स होंगे इसमें X X होगा. ईच वन ऑफ दिस मेल विच इट कंसिडर्ड, और मेल में X और Y बनेंगे. अगर ये X इस X से होगा तो फीमेल चाइल्ड होगा, अगर ये X Y से होगा तो मेल चाइल्ड होगा. अगर इस X को इस X से कन्वर्ट करेंगे तो फीमेल होगा, इस X को Y से करेंगे. मीन्स 50% चांसेस आर देयर to produce containing X chromosomes with X containing the female child, and 50% chances to produce the male child. So XY chromosome, so it is very common in the animals also, and it can be found in the chickens. और भी जितने animals हैं सब में कि 4 तरह के gametes बनेंगे. इन चारों, या तो ये X X से होगा तो फीमेल होगा, ये X Y से कम्युनिस्ट होगा तो मेल चाइल्ड, अगर ये X इससे होगा ये, इसके अलावा और कोई चांस बनता है, इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं होते हैं जिससे कि इसको फ्यूज कर सके. तो ये तो ह्यूमन जनरेशन, ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए. अब ना, व्हाट आर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर? व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, देन इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स. Characters they are determined by the genes, and genes are present on the chromosomes. जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम्स है, और इस क्रोमोसोम में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जीन्स. सो जीन्स दे कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. दे अब इसमें क्या होता है कि जीन्स दे वर कैरिड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तब तो वो लिंक्ड जीन्स होंगे. लेकिन लिंक्ड जीन्स जरूरी नहीं है कि जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करे. लिंक्ड जीन्स मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते. सेक्स लिंक्ड जीन्स they may be located on the X chromosomes or on the Y or on the both, but in the diseases which are concerned with X chromosomes, that is in man, color blindness, hemophilia, night blindness, they are example of the sex linked disease which are linked with X chromosome. इसमें X chromosome referred होता है जो कि उसको कहलाता है. Now in the normal man, suppose XY, ये man normal है, इससे कोई देर कैरियर फीमेल, यानी कि ये कैरियर जो नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसमें कैरियर है, या आप हीमोफिलिक जीन्स इससे करेक्टर थे, तो इसमें जब हीमोफिलिक करेक्टर तब इंक्लूड होगा, ये कैरियर है यानी जीन्स कैरी करती है, लेकिन ये हीमोफिलिक नहीं होगी. हीमोफिलिक कब होगी? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं करे. लेकिन मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसमें अगर एक्स क्रोमोसोम अगर कैरियर होगा तो वो बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंड होगा. जैसे मान लीजिए इसमें अब आपके नॉर्मल मैन है, इसमें आपके क्रोमोसोम्स हुआ एक्स और वाई, इसमें आपका हुआ एक्स और ये है कैरियर एक्स. अब ये एक्स अगर इस एक्स से होगा तो ये नॉर्मल फीमेल पैदा होगी, ये वाई इस एक्स से होगा तो नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल फीमेल, यानी कि ये नॉर्मल होगा. अब अगर ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स से होगा तो एक्स वाई, इसमें क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड होगा, ये कलर ब्लाइंड होगा या हीमोफिलिक होगा, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो हीमोफिलिक है, कलर ब्लाइंड है, तो ये बच्चा कलर ब्लाइंड होगा. और ये अगर इससे नॉर्मल होगा तो ये जो फीमेल होगी इससे वो कैरियर होगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं, ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी, कैरियर होगी. और एक मैन जो इससे होगा वो नॉर्मल मैन हो, नॉर्मल बच्चा होगा, फीमेल होगा. मेल फीमेल ये दोनों नॉर्मल होंगे. फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी लेकिन हीमोफिलिक नहीं होगा. लेकिन मेल 50% मेल जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे या हीमोफिलिक होंगे. ये सच है. अब मान लीजिए अगर नॉर्मल मैन इज मैरिड टू द कलर, ये है नॉर्मल मैन मैरिड टू द
कलर ब्लाइंड फीमेल, इसके बीच में क्रॉस होता है, ये है नॉर्मल और ये है कलर ब्लाइंड, ये है कलर ब्लाइंड। तो अब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स और वाई, इसमें बनेंगे दोनों कैरियर। तब इसमें अगर ये होगा, ये इससे कंट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड नहीं होगी, कैरियर होगी। अब ये अगर इससे होगा तो भी जो होगी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। ये दोनों कलर ब्लाइंड फीमेल कैरियर होंगे लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। अब अगर ये होगा ये, तो इसमें जो कैरियर होंगे ये कलर ब्लाइंड होगा, और अगर ये इससे भी होगा मैच्योर, तो यानी कि लड़के जितने भी मेल पर्सन जो होंगे वो सारे कलर ब्लाइंड होंगे, और फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। अब मान लीजिए कि कलर ब्लाइंड मेल है, ये मेल है और ये कलर ब्लाइंड है और ये फीमेल नॉर्मल है, तब इस केस में क्या होगा, आपका ये कलर ब्लाइंड से है ये होगा। तब इसमें इस केस में जितने भी आपके ये जो मेल चाइल्ड होंगे वो नॉर्मल होंगे, ना ही कैरियर होंगे। ये जितने भी मेल चाइल्ड हैं ये मेल चाइल्ड नॉर्मल होंगे। फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल नॉर्मल, फीमेल कैरियर होंगी, ये भी फीमेल है, ये भी कैरियर होंगे, कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। अगर ये मैन कलर ब्लाइंड है और ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल इज कंसिडर्स विद द कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मैन से करती है, तो ये कंडीशन, उस कंडीशन में ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क मी whether colorblind or hemophilic. In case of color blindness और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में it is commonly also called bleeder disease. हीमोफीलिया इसको हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। ये ब्लीडर डिजीज क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। नॉर्मल मैन में 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन हीमोफिलिक पर्सन में आधे घंटे से लेके 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है क्लॉट बनने में, इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज कहा जाता है। ये डिजीज जो है एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड वो इस डिजीज की कैरियर थी। बाद में आगे चल के ये डिजीज से वहाँ पे पर्सन्स अफेक्टेड हुए, हालांकि म्यूटेशन आकर हुआ एक्स क्रोमोसोम में, जिससे कि स्पर्शक्स और पेरेंट्स में वो बाद में बाइफर्केशन होकर के कुछ कलर ब्लाइंड बच्चे हुए। मोस्ट ऑफ देम दे हैव डाइड आल्सो ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस, स्पेशली द मेल चाइल्ड, बट द फीमेल, क्योंकि फीमेल में जब तक दोनों कैरियर नहीं होंगे तब तक वो डिजीज आगे नहीं होगी। कैरियर होंगे लेकिन डिजीज नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पर है। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिजीज को कैरी करेंगे, दोनों कैरी करेंगे, तब ये कलर ब्लाइंड होगी या हीमोफिलिक होगी, और अगर नहीं होगी तो वो कलर ब्लाइंड मतलब 2 कलर्स के बीच में आ जाए, जैसे ग्रीन है और ब्लू है, तो ग्रीन और ब्लू के बीच में कलर ब्लाइंड पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, पर्पल और ग्रीन है, इसमें ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। या नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात में लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो ये इसका कोई इलाज नहीं है, इट डजंट हैव एनी क्योर ऑफ इट, इट इज द डिजीज रिलेटेड टू द जीन्स। So that is what all about your genetics. Any doubt anywhere you can ask me that. आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, 3 Mendel's laws of inheritance, monohybrid cross, genotypic phenotypic ratio, dihybrid cross, only phenotypic ratio, sex linked disease, sex मतलब how the sex is determined in case of the human beings, X and Y chromosomes, as I told you here,
सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, नॉर्मल मैन इसमें, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। आपके इसमें सिर्फ 2 सिलेबस में है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। बस इससे रिलेटेड इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। The next, if I had the video on this topic, then I'll discuss the question answers about this topic. Thank you, children. Again, I'll meet in the next video.